तो आप लोग शुरू करिए। प्लीज अनम्यूट करिए आप सबसे पहले। ठीक है, अब मैं आप लोगों का होमवर्क व्यू करना चाहूंगा। आप लोग जो जो भी वेबसाइट बनाए, तो प्लीज आप लोग स्क्रीन शेयर करिए, दोनों में से एक। so you can go ahead. Okay, we will wait. Okay, anyone else made the website or anyone else have a problem? Okay, so you have made the website. Okay, nice. Okay, good. थोड़ा बहुत आप डिजाइन में बदल सकते। ओके, अपन यस्टरडे क्या कर रहे थे, पूरा ये किसके ऊपर, खाली यूआई के ऊपर फोकस कर रहे थे। आज अपन बैकएंड के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा। So we will be focusing on the backend a little bit. Okay, so can you please stop sharing? Okay, so let me pin you spotlight. Okay, very nice. तो आपने ये वेबसाइट बनाया है, बहुत जबरदस्त है ये। इसमें डिजाइनिंग भी अच्छी है, आपका कलर चॉइस भी अच्छी है। इसमें आप लोगों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मगर हर चीज, बाकी की चीज जबरदस्त। Everything else is very good. So this is the one I like the best because this one has the most changes. I saw this one on the WhatsApp group. This one has the most changes out of anyone's websites, which is why it deserves the round of applause. Very nice. Thank you. You're welcome. Okay. Anyone else? Sir, one doubt, sir. Yes. सर ये विजुअल स्टूडियो है ना सर, इसमें लिख सकते हैं ना सर? अभी जो कोडिंग है विजुअल। यस सर, मैं मेरा थोड़ा इनकम्प्लीट है सर वर्क, बोल तो आपका यूट्यूब में वीडियो देख के कर रहा हूँ सर अभी फिलहाल। अच्छा। वही थोड़ा इनकम्प्लीट है, खाली वो डिजाइन, ऊपर का डिजाइन और वो टाइटल एक दिया सर, बस उतना ही। सर बाकी का ठीक है, कल कर देता हूँ सर कंप्लीट। बिल्कुल कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ये इसका पॉइंट क्या है बोले तो आपको, आपका नॉलेज को क्या बोलते सो मैं चेंजेस कहीं को करो बोल रहा हूँ। क्यों बोले तो आपको नॉलेज के ऊपर आपको क्या मालूम होता, बोले तो आपका परसेंटेज मालूम होता। अगर आप इस पे अगर आप मेरा एक कॉपी करे बोले तो मेरे को क्या बोलता है कि आप खाली देख के कर लिए, मगर आप उस पे चेंजेस नहीं बने। अगर आप चेंजेस बनाए तो मेरे को क्या बोलता हो कि आप एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड कर सक रहे हो टॉपिक्स को। सो एनीवन? यस सर। सर सर वो तो अभी आप बोले सो यूट्यूब में तो फिलहाल अंडरस्टैंड हो गया सर। एक सेंड कर रहा हूँ और एक फिलहाल दूसरा एक बना ओन से बना दूँ सर। नहीं वैसा नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सर। बात नहीं। एनीवन एल्स? Any errors or anything in your program, you can raise your hand right now. Again, how to raise your hand? You go into the reactions panel and then there's going to be a button called raise hand. Okay, you can go ahead. Sayed Jawad, you can go ahead. You can unmute. Please also unmute. Okay, so this is what you made and you added 2 photos. Okay, nice.
No, but the problem is this style.css, it's not working. This style.css, what do you mean? Okay. So what you have to do is go to the HTML. And the reason it might not work is because you have to click on the red square. No, the red square up there. Click it. Yeah, you didn't save your CSS file. It's over here. You need to save it. Control S. Here. Just give me a now. Okay. So now that you have that, the button I was talking about is over here. This is the button you need to push to go live. And you need to open a folder or a workspace. Are you in a workspace right now? No. You have to open this folder type thing. And you need to actually create a folder. एक फोल्डर बना के उसमें डालना रहता पूरे फाइल्स में तो नहीं आता मैं आपको आज एग्जांपल दिखा देता हूँ क्लास में जब अपन कर रहे हैं जब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ Thank you. कोई बात नहीं you're welcome. How about you, Shafiq? You can go ahead. Okay, hi. Can you confirm whether this record? Will you be sharing the recording as well? Yes, I will be sharing the recording. Because I missed the initial session. Okay. So I already sent the recording for first session on WhatsApp group. You should be able to see that. तो अब अपन प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो मैं स्लाइड शो खोल लेने वाला हूँ एक सेकंड मेरे को एक सेकंड दीजिए प्रेजेंटर व्यू okay, 1 second. Slide show and share screen. Okay. Just give me a second to calibrate this. So hello. So today we are going to be focusing on click events mainly. So today the main focus will be click events. Okay. So what are click events? Click events in JavaScript are essential for enabling user interaction in web applications. What these do is when you push a button, they're used to respond to the action in web applications. These events are triggered when a user clicks a pointing device button. Like if I push a button or if I push an H1 or something like that. Such as a mouse button with an HTML element on a web page. तो एक वेब पेज पे अगर अपन बटन डाले और अपन उसको प्रेस करें वो प्रेस करे वाले से अपन ये क्लिक इवेंट एक क्रिएट होता डेवलपर्स ये इवेंट को यूज करते इवेंट लिस्टनर्स ऐड करने टू एलिमेंट्स कौन से भी उस पे डाल सकते हैं अपन बटन के अलावा भी हर एलिमेंट पे डाल सकते हैं अपन क्लिक इवेंट allowing them to respond to click events. बोला तो अगर अपन एलिमेंट पे क्लिकिंग ऑप्शन डाले तो जब भी अपन उस पर क्लिक करे तो क्या होता बोले तो एक इवेंट राइज होता वो इवेंट से अपन ये वो कर सकते these are commonly used for actions like button clicks जब अपन बटन दबाए form submissions and interactive features. Each click event generates an event object with information about clicked element and also the type of mouse button used. जब भी अपन क्लिक करें तो क्या होता
उन्हें देख लेता कि अपन क्या क्लिक कर रहे हैं, कहीं को क्लिक कर रहे हैं, कौन से माउस से क्लिक कर रहे हैं, किधर है अपना माउस एग्जैक्टली अब राइट नाउ, वो पूरा देखता हूँ. Developers can also control the default behavior and event propagation to customize the event response to click events, making them fundamental tool for creating interactive and user friendly web experiences. Why are click events important? Click events are vital for user interaction. ये यूजर इंटरैक्शन के लिए जरूरी है, नेविगेशन और फीडबैक के लिए इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट है. In web development, they empower the users to trigger actions and interact with, making them fundamental for creating engaging dynamic web experiences. अपन ये जो यूज करते क्लिक इवेंट्स अपने अपन ये यूज करें तो अपने जो भी अपन इवेंट्स बनाते, जो भी अपन वेबसाइट बनाते हैं, इसको डायनामिक बनाता है. What are the uses of click events? ये 5 मेन यूसेस है बटन क्लिक इवेंट्स के लिए. Button clicks, navigation, form validation, and user feedback, and context menus. So, any question on the presentation? Okay. Okay. तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे? Since our main is done, अपना वो हो गया, क्या अपना presentation, अपन यहाँ से अपन next उस पर जाएंगे. How to actually use click events, right? तो अब अपने को मालूम हो गया कि एक क्लिक इवेंट्स क्या है. अब अपने को क्या लर्न करना है? अपने को क्या करना है, क्या है, कैसा यूज कैसा होता है क्लिक इवेंट्स, वो फोकस करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट. So let me share my screen. तो अपन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, डेस्कटॉप पे और एक फोल्डर बना लेना. यहाँ से राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेना. न्यू फोल्डर. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक सा भी नाम दे सकते हैं. अपन क्या देंगे इसको, क्लिक इवेंट्स. फिर उसके बाद खोल लेना है इसको. यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अपने को क्या करना रहता है, यहाँ एक 3 फाइल्स बनाना रहता है. अपन इसको VS कोड में खोल लेना रहता है. तो ये अपन जो क्लिक इवेंट्स का फोल्डर बनाए, इसको लेके ड्रैग करके, या VS कोड बोल के आता है ना, VS कोड इनसाइड उस डेस्कटॉप पे लेके ड्रॉप कर देना. 5 सेकंड के लिए लोड होके ना खुल जाता है यहाँ से. तो अब अपने को क्या करना है, प्लीज डू नॉट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन. स्क्रीन पे ज्यादा मार्क्स मत डालिए, फिर बोले तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है. तो अपने को अब क्या करना है, यहाँ से 3 फाइल्स बनाना है. फर्स्ट फाइल, the first file we will be making is going to be index.html. ये नाम नहीं बदलना, क्यों बोले तो आपको प्रॉब्लम होती है. index.html. Excuse me, can you just come again after the folder? What did you do exactly? We took the folder and dragged it and dropped it on VS Code. Which code? VS Code Insiders, Visual Studio Code Insiders. Okay. तो अपने को यहाँ index.html बनाना है. First we need to make the index.html. Then we need to make the style.css. Style.css. And then after that, at last we need to make the JavaScript. आज अपने को काम में आने वाला है JavaScript. Script.js.
Okay, I'm just having a couple of problems for some reason. It's not responding. So what we need to do now is keep working. Now that we have the 3 files, we need to have my video stopped. Okay. So it's freezing for some reason here on my screen. Let's just reopen it. So the 2 files which you have taken it, you have already downloaded on your desktop, or is it there like? No, you need to download that from an external website. That was on Okay. yesterday's class. Um, sharing. Okay, now we have to reopen VS Code since it's just closed. Just drag and drop click events into VS Code. Make sure you have all 3 files in the same folder. You need to make a separate folder so that it works. And then we need the third one, which is script.javascript. Just wait for that. And now we have it started. Okay. तो अपने को यहाँ से क्या करना है, पहले एक index.html का फाइल बना लेना है. तो index.html के फाइल में अपने को पहले वो exclamation point डाल देना है. अगर नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश. नोट लिख लेना है. अब आपको ये एमएट अब्रिविएशन मिल गया था, एंटर ये कर लेना. अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, क्लिक इवेंट्स. राइट. अपने को यहाँ से अपन क्या कर लेना है, ये आ गया अपना हेड बॉडी टैग्स आ गए. ये अपने बॉडी टैग में अपने को पूरा कंटेंट लिखना रहता है, और ये हेड टैग में अपने को पूरा अपना इंफॉर्मेशन मेटा टैग्स ये हो. तो अपन यहाँ से पहले अपने style.css को लिंक कर लेंगे. लिंक कॉलन css. एंड देन अपने को यहाँ से क्या करना है, स्क्रिप्ट कोलन src. फिर यहाँ से अपने को लिंक कोलन src में अपने को सोर्स में script.js. राइट. और ये अपने को दो चीजें ऐड हो गए. अपन ये गो लाइव बटन दबा के अपना वो खोल लेंगे सर्वर. और मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ इसको. Sir, please can you increase the font? Oh, the font size. Okay. 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 So now what we have to do is our page. Just drag and drop it to the right. And then अपने को यहाँ ये लेफ्ट साइड पे यहाँ index.html डाल देना है. ये टर्मिनल क्लोज कर लेना, अपने को काम नहीं है इसका. और ये साइड बार भी अब अपन क्लोज कर ले सकते हैं. पहले स्टाइल कर लेंगे, क्या क्लोज कर दे सकते हैं. पर अपन क्या करेंगे, style.css को अगर अपन जल्दी करे वैसा, या नीचे style.css डाल लेंगे. तो यहाँ ऊपर टैब आए वक्त ये ड्रैग करके या नीचे कर लिया ना, इधर अपने को डिविजन्स बन जाते हैं अपने स्क्रीन के. यहाँ से अपने को क्या करना है, पहले ये भी इसको नीचे लेके ये टैब पे ये दिए हुए वैसा ले लेना. उसके बाद अपने को क्या करना है, ये बॉडी है ना,
बॉडी टैग में अपन एक दो बटन्स डालेंगे, बाद में अपन एक फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे लेटर टुडे, मगर राइट नाउ अपन एक बटन डाल देंगे। तो बटन, एक बटन टैग जिसमें अपन लिखेंगे Sir, sorry for disturb. Please, can you increase the font size? ओके ना। सर आप लोग डेस्कटॉप में व्यू ऑप्शन में जूम कर ले सकते सर, जूम रेशियो 100% टू 100% रहता आपको। नहीं वो क्या हो रहा बोले तो अगर अपन वो जूम रेशियो करे तो ना पूरा विंडो को ही जूम कर देता। नहीं आप नहीं सर, जो स्टूडेंट्स देखने वाले हैं ना, अच्छा यू कैन इंक्रीज योर व्यू ऑप्शन में 100 to 150% कर सकते, जो भी आपको नहीं दिख रहे ना। तो अपने को यहाँ से क्या करना है, अपन क्लिक में लिख लिए, यहाँ अपने को बटन में क्लास देके अपन पहले अपने बटन को स्टाइल कर देंगे। क्लास स्टाइल क्लास बटन, यहाँ से अपने को क्या करना है, पहले अपने एवरीथिंग स्टार पी पैडिंग :0 मार्जिन :0, ये अपने यहाँ आ गया। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, डॉट बटन में, ये डॉट बटन है अपना, यहाँ से अपने को क्या करना है, बटन को थोड़ा लेफ्ट राइट मूव करके अपन इसको डाल सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं अपन, बट राइट नाउ सही है। अपने को फर्स्ट क्या करना है, बॉडी पे डॉट बटन में, डॉट बटन में यहाँ बॉडी है, यहाँ बॉडी में क्या करना है अपने को, ड्रॉ मैं खिलाती हूँ। प्लीज इन द बॉडी अपने को क्या करना है, ये इसको सेंटर में डाल देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अपन ये जैसी सी लिखे तो उन्हें ऑटो कंप्लीट करता, और अलाइन आइटम सेंटर। और अपने को क्या करना है, मिनिमम हाइट min dash height 100 व्यू हाइट, राइट। अब अपने को बटन में क्या करना है, इसमें पैडिंग देना है, पैडिंग अब 2 पिक्सल। अपन ये जितना बड़ा है उतना अच्छा दिखता है अपना बटन, तो अब अपन 4 पिक्सल करेंगे। अपन क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की पैडिंग को डिफर कर सकते हैं। तो पैडिंग ऑन दी एक्स शुड बी 20 पिक्सल, but on the y it should only be 4 pixel। वैसा अब राइट नाउ थोड़ा उल्टा है, यहाँ आपने को 4 लिखना है और वहां आपने को 20 लिखना है। और यहाँ भी अपन थोड़ा बढ़ाएंगे, 10 लिखेंगे। अपने को ऐसा बटन लाना 10 पिक्सल 20 पिक्सल। अब यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस में अपने को 100% लिखना है, 100%। यह एलिप्स शेप आता, अपने को ये क्या क्या ओवल की शेप में आना है, अपने को एक पिल शेप आना है इसमें। तो अपने को क्या करना पड़ता है उसके लिए,
ये जो है क्या अपना बॉर्डर रेडियस, इसको अपन जितना भी बढ़ा लो परसेंटेज में उन्हें फिल में नहीं आता। अपने को क्या करना रहता कि बॉर्डर रेडियस के लिए 999999999 एक 4 5 10 15 बार लिख देना, फिर पिक्सल एक टिल शेप बना देता हो ऐसा। अब अपन बॉर्डर को ब्लैक रख ले सकते, मगर बॉर्डर की विड्थ थोड़ा कम करेंगे। बॉर्डर डैश विड्थ 1 पिक्सल, नहीं 2 पिक्सल, तो नहीं 1 पिक्सल सही है। अपन इस पे शैडो भी डाल सकते, बटन पे एक शैडो डालेंगे। अपन थोड़ा बहुत नियॉन बटन की भी लुक ले सकते, कर सकते, कोशिश कर सकते। तो बॉक्स शैडो, इसको अपन हवर की प्रॉपर्टीज पे डालेंगे। यहाँ से अपने को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हैशटैग, यहाँ पर हैशटैग लिख के, ये तो हमें ब्लू लिख देना है। यहाँ पर ब्लू ब्लू लिखे बाद में से अपन इस पर हवर करके लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं इसको। ये काउंटर को मूव करना, ऐसा मूव करे तो अपना व्हाइट का बैलेंस चेंज होता, ऐसा मूव करे तो अपना ब्लैक का बैलेंस चेंज होता, राइट। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, ये एक परफेक्ट बैलेंस लाके एक थोड़ा ब्राइट कलर आना, ब्राइट आना ऐसा। तो नहीं ये सही, ये आ गया अपना कलर। अपन इसके फॉन्ट टेक्स्ट कलर को व्हाइट बना दे सकते हैं। टेक्स्ट डैश कलर, टेक्स्ट कलर में यहाँ कलर लिखना, उसको व्हाइट बना देना। एक्सक्यूज मी, जी यस, इसमें अपन ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं? ट्रांजिशन जी अब अपन ऐड करने वाले हैं इसमें ट्रांजिशन। हवर ओके, अपन हवर करें फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं? इसका जी अब ओके, जिसका आउटपुट का बोल रहे हैं या इनपुट का? इनपुट का बोल। जिधर अपन लिख रहे हैं कोडिंग, जी जी, नहीं नहीं, आउटपुट जो क्लिक मी जो लिखा हुआ है, उसको भी जी। कर सकते हैं अपन। यहाँ एक वही। फॉन्ट साइज बोल के लिखना ना पड़ता, अपन इसको लार्ज बनाएंगे ऐसा। अपन अब क्या करेंगे, ट्रांजिशन यहाँ लिखना रहता, ट्रांजिशन, फिर अपने को ऑल 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, ease in out। यहाँ फिर अपने को क्या करना रहता, अपने को उसका हवर पे जाना रहता। तो डॉट बटन के बाद कोलन, फिर वो कोलन के बाद हवर लिखना। ये लिखे तो अपने को ये बटन पे हवर करे तो एक्शन आता अपन। So what we need to do now is, now that we have a little bit of our click events done, what we were doing previously was we were adding a transition for our hover action. When we hover, let's add a box shadow. And what we want to do here is we need to add multiple properties, 3 properties, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, 1. I'm pretty sure something like that. Okay, or instead of that, we can make the color swap. Right? Right now the background is blue and the text color is white. Right? We just want to copy this and then swap this. मैं कब से देख रही हूँ मैं तेरे को, इधर अभी शुरू हुई मीटिंग। अरे मम्मी ने क्या होता भाई, मम्मी प्लीज। क्या नहीं हो? Okay, color.
Please everyone mute themselves. It's kind of distracting. Here is where we want to add the color. And then here is where we want to say background. Color will be white. And that's going to be on hover. So that's going to happen like that. There's going to be a transition. And when we hover over it, we want the cursor to become a pointer. Cursor pointer. Like that. Now if we go into our script.js, what we want to do is we want to add a feature where we just like click it and then there should be an alert saying hello world. Okay. So this is the button. Anything we refer to in JavaScript, we usually add something called an ID on it. ID. ID is going to be equal to brackets. No, ID is going to be equal to that. अपन इसके ID के लिए क्या डालना है? इसके ID को भी अपन बटन लिख सकते हैं. यहाँ ऊपर मैं डिफर लिखना भूल गया. अगर अपन नहीं लिखते थे तो एरर आता था. यहाँ डिफर लिख देना. ID is for? ID is for defining the identification of the button. Okay. तो अपन जब ये identification define करते हैं, ये अपन स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते. We can use this in the script. तो अपने को क्या करना है? बटन यहाँ बटन में अपने को क्या लिखना रहता है? ये अपन कांस्टेंट बनाते हैं. कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्ट लिखते हैं अपन जावास्क्रिप्ट में. ठीक है. यहाँ से अपन क्या लिखना रहता? button is equal to document dot get element by id. Right? Get element by id. Like this. So But for this is- every website, for like whenever we are also working, Yes. so are we going to use the same thing like whatever you're using, like text? What do you mean by that? Are you getting me? See, now like your screen is being divided into two parts, right? Yeah. So the upper part, like you have written button class is equals to button and those apostrophes and all. So whenever we are also going to work on this thing, like whatever the work, like after the class, are we going to use the same text? Yeah, you should be able to, you should use the same text, but you need to add changes for like anything, any project that I tell you, you need to add a little bit of changes. Right? So like, changes in the sense how, like, how we should know that, we have to make a different one, because here you are writing constant and the button, the is equal, then comes is equals to then document. Not in the JavaScript a lot, but mostly in the HTML, like styling changes or like the button position. How I mean to ask, like, how we will get an idea, like, how to change it. Like the style. Because as this is completely new to me, so I'm like a bit clueless, like, whatever you're writing, it's okay. Like for me, like, you're training us. But when we sit and do our work on our own, then how do we go about it? Like, so first of all, you can change. The first thing you can look at when changing is the style.css file. You see all these colors here? Yes, I do see. You see all these colors? You can change those colors. You can make them your own colors. You can make the border radius different. You can make the padding different. Make the button smaller. Make the font size smaller. Okay. Make the font size The images which we are going to add, if you're going to add the images and all, so everything will be in coding, not the directly insert the image and all. So like for images, we have to do it in the index.html. Okay, so that will be different. Yeah. So index.html is this top 5. This is style.css and this is script.js.
Okay. Okay, it might be a little confusing. I will put it back. Okay, this Okay, style let's see here. uh, This is index. This is index style. for the images. And this Style is like JavaScript. whatever style we needed, and the script is this like for the script, whatever we are going to write. Yes. Script is Right? just Am I action. correct? Script is action. HTML is Okay. structure. Script is action. And Okay. style is polish. Okay. Okay. Oh, yeah. Thank you. सर हमारा डाउट है कि ये आप जो लिख ले रहे हैं ना सर, पैडिंग और बटन्स, ये जी पूरे हम कहाँ से लेना बोल के वो डाउट है सर। बोले तो हम न्यू है ना सर, इसको आप पैडिंग लिख रहे हैं और जो भी कोडिंग्स लिख रहे हैं ना, जी डिव बोल के CSS में फ्लेक्स करो, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले। तो ये पैडिंग क्या रहता बोले तो ये इनसाइड रहता ना बटन के। हाँ ये हाँ बटन वही सर, एक एक जो आप जो यूज कर रहे हैं ना बटन्स और पैडिंग का, जो आप CSS में अभी लिखे ना सर, एक बार CSS क्लिक करो सर, एक बार CSS में स्क्रिप्टिंग आप लिखे ना, कोडिंग जो आप पैडिंग ये बोले तो ये इनसाइड का स्पेसिंग है। अब अगर मैं पैडिंग रिमूव कर दिया वही आप लिखते समय वो बोल दो सर, हमारे को आइडिया आइडिया आता। आप जो मार्जिन लिख रहे हैं, डिस्प्ले लिख रहे, जस्टिफाई कंटेंट लिख रहे, अलाइन आइटम्स लिख रहे हैं ना सर। आप एक बार देख लिया ये हाँ क्लिक नहीं हो गया ना, जब मैं पैडिंग हटाया तो ये आया। मैं पैडिंग डाला, मैं हाँ पैडिंग समझ में आ रहा सर, तो समझ ये में आ आ गया। रहा। तो हाँ स्पेस सर हाँ पैडिंग से बॉर्डर हाँ मालूम हुआ सर। नहीं कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, कुछ कुछ ऐसा ट्रांजिशंस कर्सर्स और जो जो है वो समझ में नहीं आ रहा बस। अभी आप बॉर्डर बटन बोलो तो हमारे को बटन बोलो तो हमारे को समझ में आया सर। वो क्लिक करो तो आउटपुट दूसरा आता बोल के। तो अपन जो Yeah, one more thing. After doing this, like, you know, this will come as a website, right? Yes, it will. This is right now a web page. हाँ वेब पेज राइट। हाँ तो आपका जो वेब पेज आप ये टेक्स्ट में लिख रहे हैं, आप जो मतलब जो डिजाइनिंग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो आपका जो स्क्रीन पे जैसा आएगा एग्जैक्ट वेब डिजाइनिंग, सो कैन यू शो अस दैट आल्सो, लाइक यू नो, आफ्टर द क्लास, सो दैट वी विल हैव एन आइडिया कि आप यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो वहां पर कैसे आ रहा है। सो वो बाजू का स्क्रीन वही है मैडम, बाजू का स्क्रीन वाइट स्क्रीन। ये जो वाइट स्क्रीन है ना, ये जो अपन लिख रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। ओके वर्डप्रेस नहीं कर रहे हैं अपन, वर्डप्रेस में अपन वो ड्रैग एंड ड्रॉप का एलिमेंट है। ओके बट द स्क्रीन इज प्लेन राइट? Sorry, but yeah, so right now it's all plain. The screen is like, you know, plain and blank. For you? Yeah, it's plain actually. For me, it's like the whole screen is white, not the left part of the screen where you're writing, but the right part of the screen is completely white for me. Yeah, it's supposed to be white. Do you see the button in the middle though? Yeah, I can see the button. Yeah, that's the only thing you're supposed to see. Okay. ना अभी तो फिलहाल एम्प्टी पेज है मैडम, वेब पेज पूरा एम्प्टी है। Okay. हाँ एक एक का बता रहे सर, वही मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक एक जो चीज बोल रहे हैं ना आप, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके तो थोड़ा अच्छा रहता। Yeah. Okay, okay. Thank you. Thank you. You can go ahead. Thank you. अब ये बॉर्डर रेडियस जिसके लिए रहता है, ये अगर अपना डब्बा आ रहा ना, ये बॉर्डर रेडियस डालते हैं अपने को राउंडेड डालने के लिए। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के लिए है। बॉर्डर विड्थ बोले तो ये बॉर्डर का जो विड्थ है, अब राइट नाउ एक ब्लैक लाइन है, नोटिसेबल नहीं है, वो एक ब्लैक लाइन है, वो 1 पिक्सल की लाइन है। ये कलर तो टेक्स्ट कलर के लिए रहता। और ये ट्रांजिशन बोला था, जब अपन हवर कर रहे हैं ना और वो स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा, अगर मैं ये ट्रांजिशन हटा दिया तो ना एकदम एक स्नैप के वैसा होता, चुटकियों का वैसा होता। एनिमेशन भी कह सकते हैं, एनिमेशन के टाइप में, मगर ट्रांजिशन एनिमेशन में फर्क रहता। एनिमेशन दूसरी तरीके से मूव होता और ट्रांजिशन अलग तरीके से। ट्रांजिशन बोले तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक उससे मूव होना, एक मूवमेंट पैटर्न से मूव होना। एनिमेशन बोले तो उन्हें काइंड ऑफ अलग अलग तरीके से मूव होते हुए एक उस पर एक स्टेट पे आता हो। ओके। कर्सर पॉइंटर, या अपन जब उसके ऊपर हवर करते तो इन्हें बटन का कर्सर आना, क्लिकिंग कर्सर, लाइक दैट।
तो अब अपन अपने script.js में जाएंगे और यहाँ एक बटन है, ये बटन में गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ अपन बटन लिखते, क्यों बोले तो जब अपन HTML में लिखे थे, अपने HTML में भी अपन इसको बटन पुकारे थे, क्या है, आईडी इक्वल्स बटन, और यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। इसके बाद अपने को क्या करना है, कॉन्स्ट आ गया बाद में से, कॉन्स्ट डाले बाद में से अपने को अब अपना बटन रेफर हो गया, वी रेफर्ड आवर बटन। यहाँ से अपने को क्या करना रहता, बटन डॉट ऑन क्लिक, प्रीटी श्योर या ऑन क्लिक से अपन जब अपन करते इसको इक्वल इक्वल लिखना। उसके बाद बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, जब ये बटन नहीं रहता तो पहले मैं आपको ये फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्स्ट बोले तो कांस्टेंट, कॉन्स्ट इज फॉर कांस्टेंट। बटन अपना वेरिएबल नेम है, जो बटन है अपना जो वेरिएबल रहेगा उसका नाम है बटन। इक्वल्स इक्वल्स अपन असाइन कर रहे हैं, इक्वल्स बोले तो अपन असाइन कर रहे हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बोले तो आपको कंफ्यूजिंग होगा। डॉक्यूमेंट बोले तो जो अपना वेब पेज है, ये राइट साइड पे, ये वेब पेज को अपन डॉक्यूमेंट पुकारते, ये पूरा वेब पेज डॉक्यूमेंट है। इसमें एक एलिमेंट रहेगा, ये बटन को अपन एलिमेंट पुकार सकते हैं, टैग, बटन का टैग रहता, और जब आउटपुट में इसको बटन का एलिमेंट बोलते। ये बटन एलिमेंट का है बाय आईडी बटन, तो अपन इसके आईडी चेक करते, जो भी एलिमेंट है उसका आईडी चेक करके बोलते हैं कि अगर इसका आईडी बटन है तो हमारे को यहाँ दे दो। ये अपन ले बटन का ले लिए, ये अपन स्लैश कर लेंगे। बटन में अपन जब क्लिक कर रहे हैं, बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स अपन अलर्ट इशू कर सकते हैं, अलर्ट आना है स्क्रीन पे। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये बटन में एक फंक्शन नहीं होगा ऑन क्लिक बोल के, ठीक है। ये जब क्लिक करेंगे वो तो HTML में हैंडल करके अपने को बोल दे रहा हूँ क्लिक हुआ या नहीं। तो मैंने बोला बटन डॉट ऑन क्लिक, इज इट, डिड वी क्लिक, अगर कोई क्लिक करे क्या, तो अपने को क्या करना रहता है, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बोल के सिंटैक्स रहता जावास्क्रिप्ट में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं फंक्शन बोल के, मगर अपन एरो फंक्शन इस्तेमाल करते। तो क्या करना रहता, ये दो पैरेंथेसिस लिख के एक इक्वल साइन के बाद एक ग्रेटर देन साइन, आपको थोड़ा डिफरेंट आएगा, एक इक्वल साइन के बाद एक ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद दो ब्रैकेट्स ऐसा, इसको एरो फंक्शन पुकारते हैं। अपन यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो अपना मेन प्रॉपर्टी क्या रहता है, ई बोले तो ये क्लिक इवेंट है अपना, जो अपन प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर रहे थे क्लिक इवेंट्स के ऊपर। ये ई अपना क्लिकिंग इवेंट है, ई अपना क्लिक इवेंट है। तो अपन यहाँ से बटन डॉट ऑन क्लिक हो रही, जब अपन क्लिक करें तो पहले अपने को क्या करना रहता, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या कर रहा है, जब अपन क्लिक करें और ना बोल रहा रिफ्रेश नहीं करना, पेज को रिफ्रेश नहीं करना, ओके। उसके बाद एंटर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अलर्ट बोलेंगे। अलर्ट बोले तो एक पॉपअप मैसेज अलर्ट, फिर यहाँ है अलर्ट में हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ओके। फिर अपन यहाँ खबर करें, राइट, अपना क्लिकिंग का इवेंट आ रहा, क्लिक करते कि अपने को एक अलर्ट पॉपअप हो रहा, क्या बोल के, हेलो वर्ल्ड, which is what we want, right? तो अपने को अलर्ट हेलो वर्ल्ड बोल के आ रहा।
मगर अपने को अब थोड़ा एडवांस्ड होना है, राइट? ये राइट नाउ जरा इजी है, इजी इजी है ये थोड़ा, अपन थोड़ा एडवांस भी बना सकते। अब आप लोगों को कुछ भी अब तक ये पॉइंट तक सवाल है बोल के बोले तो आप हैंड रेस करिए। एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। Am I audible? Okay. Yeah, you're audible. Right side पर अब जो screen है white color screen, तो Yes? वो screen आप जो folders खोले वो है क्या? You're not audible. Am I not audible? Yeah, no, your voice was like, it wasn't clear. Okay. So I wanted to ask you the right side, the screen which is there. How did you open that? I am unable to hear you. What did you say? The right side? आपका ये जो web design का जो page है white वाला. Okay. You should do one thing. You should like rejoin, because what's happening is whenever you talk, it's kind of like muffling in my speaker, and I'm not able to hear you clearly. Try rejoining. Okay. Done. नहीं, मैसेज में कर दीजिए मैडम, मैसेज में डाउट। जो बटन ऑन क्लिक इवेंट है ना, जी? ये बटन ऑन क्लिक इवेंट के पास ई के बाजू का आप क्या डाले थे? वो ई के बाद क्या है बोले तो एक इक्वल साइन है और एक ग्रेटर देन साइन है। अच्छा, इसको एरो स्पेस नहीं रहना दोनों के बीच में। नहीं स्पेस नहीं दे रहा हूँ मैं दोनों के बीच में, आपको दिखाने के लिए दिया था वो, नहीं देना है, जी दोनों जी के बीच में स्पेस नहीं देना है। जी ठीक है। और मोहम्मद इस्माइल, लेकिन मैं जी, तो आप अलर्ट जो है राइट उसकी कोडिंग करे बट राइट साइड वो नहीं आया राइट। नहीं आया। अलर्ट जब अपन करे, अपन जब ये बटन दबाए ना तो यहाँ जी पॉपअप मैसेज आया ना, हेलो वर्ल्ड बोल के। ओके मेरे पास ना इक्वल टू साइन के बाद ग्रेटर देन साइन डाले तो वैसा नहीं आ रहा, मेरे पास स्पेस हाँ आ नहीं, रहा वो है। मेरे को थोड़ा बहुत आता हो, आप लोगों को नहीं आता मगर मेरे को आता है ये एरो। एक सेकेंड, वो भी डिसेबल कर देता हूँ मैं। नहीं तो आप लोग भी डाल ले सकते हैं, फॉन्ट पैक रहता है ये, आप लोगों को दिखाता हूँ। जी ये व्हाइट स्क्रीन क्या है बोले तो अपने को यहाँ एक बटन आता है नीचे गो लाइव बोल के, फुल स्क्रीन में करे तो एक बटन आता है नीचे गो लाइव। ये गो जी लाइव का जी बटन दबाए तो आपको क्या करना रहता, एक स्क्रीन उन्होंने पॉपअप कर देता। ये स्क्रीन आपका व्हाइट स्क्रीन है, जो मेरे को व्हाइट स्क्रीन आ रहा है ये व्हाइट स्क्रीन है। तो वो हो गया। तो अब अपन अलर्ट का डाल दिए, अलर्टिंग फीचर डाले और अपने को थोड़ा एक बेसिक ग्राफ्स आ गया, कैसा चलता है ये, कैसा चलता कैसा नहीं। अब अपन क्या करेंगे, एक मिनी कैलकुलेटर का कोशिश करेंगे। अगर रेडी हाँ, ये मेरे पास चल रहा नहीं है, आप एक बार देखिए ना। ओके, दिखाइए आप। जी दिखा रही हूँ। स्पॉटलाइट बटन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, तो आपको वैसे जाना चाहिए। हाँ, वो नहीं आ रहा है, उसके लिए कोड भी काम नहीं कर रहा मेरा। आप दिखाइए मेरे को आपका कोडिंग। जी ठीक है, 1 मिनट दिखा रही हूँ। वो नहीं, लाइक आवर आउटपुट। 1 मिनट दिखा रही हूँ। बटन दबाइए आप। जी दबा रही हूँ। पॉपअप नहीं आ रहा आपको? जी नहीं आ रहा। वापिस index.html पे जाइए। ओके, क्या है बोले तो आपका आईडी बटन है, script.js में जाइए। document.getElement by id बटन में आप कोट्स डालना भूल गए, कोट्स डालना जरूरी रहता वहाँ, मैं वो पॉइंट आउट अच्छा करना भूल गया। यहाँ जिधर बटन है उधर कोट्स डालना जरूरी रहता, सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम में नहीं। यहाँ जिधर गेट एलिमेंट बाय आईडी में है अपने को यहाँ कोट्स डालना जरूरी रहता, क्यों बोले तो वो स्ट्रिंग रहता, स्ट्रिंग के टाइप, जी जी ठीक है। टाइप रहता। जिधर भी मैं लिखा आपको वो लिखना जरूरी रहता, मैं पॉइंट आउट करना भूल गया। ये जो जी ठीक है। ये रहता है ना,
या आपको कोट्स स्ट्रिंग डालना जरूरी 100, आप डाले तो नहीं डाले तो यूजुअली एरर देता है, मगर आपको एरर कहीं को नहीं दिया, आपको क्या बोले तो आपका वेरिएबल नेम कांस्टेंट, आपका वेरिएबल नेम बटन हाँ से इसलिए नहीं आया आपको एरर, तो आता था। दैट इज जी डन राइट। या मैं शेयर करता हूँ। Okay. तो अब अपने को यहाँ तक बटन क्लिक नहीं आ गया राइट। अपने को मिनी कैलकुलेटर बोले तो कैसा आना, 2 इनपुट फील्ड्स आना, नंबर 1 एंड नंबर 2, कौन से 2 नंबर ऐड करना है। फिर नीचे 3-4 बटन आना, प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन, प्लस माइनस इक्वल टू, यानी तो अपन अब फॉर राइट नाउ प्लस का डालेंगे। आप लोगों को एक बटन आना, होमवर्क में क्या करने वाला हूँ, होमवर्क में भी लिखो, अपन नेक्स्ट वीक क्या करेंगे वो उसके बाद का, इसको फुल ऑन कैलकुलेटर बनाएंगे। बट राइट नाउ अपन क्या करेंगे, इनपुट फील्ड से अपन आज क्या करना है इसको करेंगे। तो अपने को ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ रहे हैं, अपने को ये 2 इनपुट फील्ड्स बनाना है, इनपुट और ये लोअर केस रहना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं नंबर लिखना है, नंबर, और इनपुट कोलन नम, इनपुट कोलन नंबर। फिर 2 इनपुट एक के बाजू एक आ रहा है, अपने को नहीं होना है वो, एक के ऊपर एक आना। तो अपन क्या करते, अपने वो डिफ का टेक्निक इस्तेमाल करते। इसको अपने को क्या करना रहता है, यहाँ एक डिव 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 बोल के लिख देना, इसमें ये 2 इनपुट्स को मूव कर लेना ऐसा राइट। ये दोनों अपने टाइप नंबर के इनपुट्स आ गए इसमें, ये डिव में। ये डिव को अपन एक क्लास देंगे, और ये अपन इसमें क्लास में क्या लिखेंगे, इनपुट्स। यहाँ से अपने को स्टाइल डॉट सीएसएस में जाना है, डॉट इनपुट्स में भी लगाऊंगा। ओके, तो अपने को क्या करना है, यहाँ इनपुट्स पे जाके ये ब्रैकेट्स ओके। अपने को यहाँ इनपुट्स में हाँ, तो अपने ये पूरे आ गए डॉट इनपुट्स। अपने को क्या करना है अब यहाँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स का डायरेक्शन, तो डिस्प्ले फ्लेक्स बोले तो इन्हें फ्लेक्स बॉक्स यूज करना, फ्लेक्स यूज करना, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कॉलम में रहेगा, एक के ऊपर एक आना, लाइक दैट। और ये बॉडी के में भी वही रहना, डिस्प्ले नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अपन हर चीज के बीच में गैप देंगे। गैप बोले तो स्पेसिंग, अपन हर उसमें स्पेसिंग डालेंगे, गैप 20 पिक्सल, गैप गैप 0.5 रन, और अपन ये दोनों में भी एक 0.5 रन का गैप दे देंगे। अब मैं अब तक पिक्सल्स यूज करा, अब मैं रैम क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों बोले तो ये जरा रिस्पॉन्सिव रहता है और ये बेटर रहता है। 0.5 रैम कुछ 8 पिक्सल होता, राइट। तो अब अपने को क्या है, ये 2 इनपुट फील्ड्स आ गए, और अपन अब नंबर्स इंटर कर सकते हैं दोनों में। अपन यहाँ दोनों में क्या लिखना है बोले तो आईडी नंबर, अपन क्या लिखेंगे num1, फिर यहाँ भी आईडी लिखेंगे num2। तो अपने को ये पूरे कोट्स में डालना रहता है स्ट्रिंग में,
क्यों बोले तो स्ट्रिंग में अपन जो भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से अपने को क्या करना है, ओके, तो यहाँ से अपने को क्या करना रहता, ये जो कॉन्स्ट बटन है, अब राइट नाउ अपन थोड़ा आगे कर रहे हैं, तो अपन ये बटन का ऑन क्लिक का फंक्शन अपन बाद में करेंगे। फर्स्ट अपने को ये दोनों इनपुट्स भी ले लेना है, तो कॉन्स्ट इनपुट कॉन्स्ट नंबर नंबर 1 इक्वल्स, तो अपना फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोट्स लिखना मत भूलिएगा, num1। फिर अपने को ये फिर से लाइन लिखना है, बहुत सिमिलर रहेंगे ये वाला, डॉक्यूमेंट कॉन्स्ट नंबर 2 is equal to document dot get element by id num2, राइट। तो ये अपने दोनों बटन्स है, ओके। ओके, तो अपना क्या है बोले तो दो नंबर्स आ गए अपने को और अपना बटन। अपने को क्या करना है, पहले अपने एक दो वैल्यूज बनाएंगे अपन, लेट नहीं अपने को क्या करना जरूरी नहीं हो। अपन जब ये बटन दबाते तो ये जब बटन दबाते अपन बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अपन ने को फिर से वो एरो फंक्शन बनाना है। आप लोगों को थोड़ा स्पेस आएगा इसमें, बटन डॉट ऑन क्लिक, इसके बाद अपने को क्या करना रहता, डोंट वरी, अपना ये ऑलमोस्ट एंडिंग पे है कैलकुलेटर का। अपने को ये बटन जब दबाए, यहाँ एक अपने को अलर्ट आना, पहले बात अपने को यहाँ लिख लेना है, देखो अपना जो डिफॉल्ट एक्शन रहता है वो स्टॉप कर देना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, नो रिफ्रेशिंग। फिर उसके बाद अपने को क्या अलर्ट करना है, अपने नंबर 1 डॉट वैल्यू डॉट टारगेट टेम्परेचर डॉट, अपने को यहाँ पर क्या करना है, डॉट वैल्यू, ओके नहीं, अपने को यहाँ स्टेट कैसा बना देंगे, लेट नंबर 1 वैल्यू, लेट नंबर 1 वैल्यू is equal to 0, let number 2 वैल्यू, और मैं यहाँ लेट लिखा, पहले ऊपर क्या होता है कॉन्स्ट लिखा, अब यहाँ नंबर 2 लेट क्या को लिखा बोले तो, लेट बोले तो अपन इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते, और जब अपन नंबर बदलते हैं अपने को बदलना ही चाहिए नंबर एवरी लाइक सेकंड, जब भी आप नया नंबर लिखते हो बदल ले जाना, ये भी 0 रहना। इसके बाद अपने को क्या करना रहता, अपन क्या करते, नंबर प्लीज म्यूट, नंबर 1 डॉट वैल्यू, नंबर 1 डॉट
ऑन चेंज अपने को ई आता, और ये चेंजिंग का इवेंट रहता, ये भी एक इवेंट है मगर ये चेंज होता। ब्रैकेट्स या ऑन चेंज में क्या लिखना है, ये जो ई है, ई डॉट पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट, फिर अपने को क्या करना है, नंबर वन वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट करो ना जी, थोड़ा नंबर वन वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। और अपने को नंबर 2 के लिए भी सेम करना है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ इसको। नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 2। अपने को अलर्ट क्या कर, अलर्ट में क्या लिखना है, अलर्ट नंबर वन वैल्यू प्लस नंबर वन वैल्यू प्लस नंबर 2 वैल्यू। यहाँ पर अपने को कोट्स नहीं लिखना है, क्यों बोले तो ये दो नंबर्स को अपन ऐड करके दे रहे हैं। तो अपन ये ट्राई करेंगे, 23 प्लस 23 क्लिक मी, अलर्ट नहीं हो रहा, को अलर्ट नहीं हो रहा, अपना एरर आ रहा अपने को। F12 देखे तो अपन एक दो बार इसको दबाएंगे, नंबर वन डॉट ऑन चेंज, ओके। तो अपन ये भूल गए कि यहाँ अपने को इक्वल्स लिखना है, और अपन इसको कॉल कर दिए, ये कॉल नहीं करना है अपने को, इसको ऐसा लिखना है, और इसको भी Meeting is going to end in 5 minutes again. here, फिर ए, ये है ई इक्वल्स ऑन चेंज। अपन यहाँ 23 लिखे, यहाँ 23 लिखे, क्लिक मी, 23 दे रहा है। कहीं को क्यों बोला, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स है, अपन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करें तो उन्हें कंकैटिनेट कर देता, दोनों को एक के बाद भी एक डाल देता, मगर अपने को इंटीजर एडिशन होना है। तो अपन अब अपने को क्या करना है राइट नाउ, अपने को ये नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है। हाउ, तो अब राइट नाउ क्या हो रहा बोले तो स्ट्रिंग है, अब एक फंक्शन रहता है जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शन रहता है जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग को फ्लोट बना देता, राइट। तो अब अपना सपोज एक स्ट्रिंग है, उन्हें उसको नंबर बना देता। अब अपन पार्सेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या नंबर का इनिशियलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन नंबर का इनिशियलाइजर इस्तेमाल करें तो उन्हें फ्लोट भी बन सकता है, फ्लोट में आता, फ्लोट बोले तो डेसिमल पॉइंट्स। मगर अपन पार्सेंट इस्तेमाल करें तो अपने को 1 2 3 4 आता, अपने को डेसिमल्स नहीं आ सकते। तो अपन इसको नंबर के इनिशियलाइजर से कर लेंगे, नंबर, उसको ऐसा, इसको कॉपी कर लेके और एक बार लिख लेना पड़ता है अपने को, पेस्ट। फिर यहाँ अपन 23 लिखे, यहाँ अपन 23 क्लिक मी, 46, यही सुना था अपने को, अपना रिजल्ट अपने को अब आ गया, राइट। अपना रिजल्ट अपने को आ गया, अपन एक कैलकुलेटर बना सके। अब अपन इसको मल्टीप्लिकेशन बना दे सकते, डिवीजन बना सकते, अपन और 4 बटन और 3 बटन डाल सकते, हर बटन हर बटन पे डिफरेंट आना, एक पे एडिंग आना, एक पे सब्ट्रैक्टिंग आना, एक पे मल्टीप्लिकेशन आना, एक पे डिवीजन आना। वो टास्क आप लोगों के ऊपर रख रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट वीक तक ये कोशिश करके बना लो। तो अब अपना Q&A सेशन है, अब Q&A पे आ रहे हैं अपन। तो मैं आप लोगों को एक दूसरा लिंक भेजने वाला हूँ,
तो नहीं तो अब राइट ना आपको किसको भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर लीजिए. Anyone has any questions? Just raise your hand. Sir, what is the difference Python and JavaScript, sir? Python is for data science. JavaScript is for web development. You can go ahead. How to open the live server? The live server, there's going to be a button at the bottom saying go live. Yeah. मैं अभी Yes. audible मैं अभी audible हूँ. Yeah, you're still muffling a little bit. Okay, There's okay. not I have okay, wait, just 1 second. There's going to be a button on the bottom. There's going to be a button on the bottom saying go live. You just have to push that, and you will like get it popped up. That's going to pop up on a window. सर एक बार शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दीजिए सर. आप लोगों को एक छोटा डाउट है. हाँ करिए. सर यहाँ पर आप लास्ट क्लास में बोले थे ये स्टार कॉलम स्टार इज यूज्ड टू रिफर ए क्लास. ये कंपलसरी लिखना है सर? दिख रहा सर? जो लिखना नहीं आपका दिख रहा है ना स्क्रीन मेरे को राइट नाउ. एक सेकंड आप रीशेयर करिए. सर एक मिनट शेयर हो रहा सर. डिस्कनेक्ट हो गया सर. अच्छा मैं आपको एक और एक लिंक भेजता हूँ 1 सेकंड में. मैं CCS में आप बोले ना सर. हाँ कॉलम स्टार डॉट इज यूज्ड टू रिफर ए क्लास. yeah colon is used to refer to a class. Dot is referred to a class. हाँ वो लिखना वो डॉट लिखना जरूरी है सर. कॉलम स्टार बोल के. जी हाँ, वो डॉट लिखना. सर और एक लिंक भेजना था सर. जी और एक लिंक क्वेश्चन एंड आंसर कैसे रखना था सर. हाँ रख रहा हूँ मैं. अब मैं ये एंड करके और एक बना रहा हूँ. Just give me a sec. So you are just sharing your screen, right? You can go ahead and unmute. सर दिख रहा सर स्क्रीन? हाँ दिख रहा है. ये लास्ट क्लास में आप बोले ना सर ये बैकस्लैश स्टार एंड डॉट इज यूज्ड टू रिफर ए क्लास. हाँ ये जो बैकस्लैश स्टार है ये इसको कमेंट बोलते हैं. क्या बोलते सर? इग्नोर कर देता है. ये जो बैकस्लैश स्टार लिखे ना आप. हाँ सर. इसको कमेंट बोलते हैं. ये कंप्यूटर इग्नोर कर देता कंप्लीटली. देख के उन्हें अंदर मार देता है. कुछ भी नहीं है बोलते. ठीक है. ये लिखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना सर? एवरी कोडिंग वही एवरी से ये सही है सर. ये जो लिखे सब फॉर्मेट बराबर है सर? बराबर है. हाँ ठीक है सर. नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टार लिखे सर यहाँ पर. दिख रहा सर? वो भी लिखना है. वो भी कंपल्सरी. अच्छा दोनों का मतलब क्या है सर बोले तो? इग्नोर कर. स्टार का ये एक कमेंट का मतलब क्या है? कंप्यूटर इग्नोर कर देता. अपन ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट हो. अगर अच्छा ओके. आप उनको समझाने या लिख दे सकते हैं इधर उधर स्कैटर करके. अच्छा ओके सर. और आप ये स्टार बोले तो एवरीथिंग एवरी जो भी है कंपोनेंट हो दो क्लास हो दो एलिमेंट हो दो कुछ भी हो दो आप उसको वहां लिख दे रहे. क्या लिख रहे हैं? स्टार. उसका जो भी है उसका पैडिंग 0 रहना और उसका मार्जिन 0. हाँ सर. सर ये स्टार्टिंग का ही लिखना है सर. नेक्स्ट वालों को जरूरत नहीं है ना सर बॉडी को इमेज को? हाँ अब अपन स्टार्टिंग में लिखे. अगर अपन नहीं लिखते थे तो आपको हर उसमें लिखना रहता था. पैडिंग 0 मार्जिन 0 पैडिंग 0 मार्जिन 0. अच्छा ओके राइट सर. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ मेरा एक है कि आप ये जो कोडिंग के साथ सिखा रहे हैं ना, जिसमें कल भी आपसे पूछी थी कि जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में तो और इजी रहता ना. व्हाई नॉट दैट? व्हाई दिस?
अब वर्डप्रेस बोले तो आप वर्डप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस कर सकते हैं, मगर ये नहीं नहीं वैसा नहीं. जी बोलिए. डू वी हैव टू पे फॉर दिस आल्सो, क्योंकि वर्डप्रेस पे तो आपको मतलब पे करके ही करना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस पेड है, विदाउट दैट तो वी डोंट हैव टू. ये फ्री है. तो इस पे भी पे. अच्छा ओके फ्री है. तो मतलब दोनों में से मतलब इजी कौन सा रहता, मतलब बिकॉज आई फाइंड लाइक कोडिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट. रहता मेरे को वर्डप्रेस डिफिकल्ट दिखता था फॉर सम रीजन. क्यों बोले तो आपको स्क्रिप्टिंग में हार्ड रहता हो जाता हो. आप एक बार अगर आप अच्छा. वर्डप्रेस करें तो आप वर्डप्रेस की हद तक ही रहते. वर्डप्रेस जहाँ तक आपको करने दिया आप वहां तक ही रहते. अगर आप उसके आगे बढ़ना चाहे तो उन्हें रोक देता. हाँ बिकॉज इट हैज देयर ओन डिजाइन्स. खाली उनके डिजाइन तक ही आप लिमिटेड है. अब आपका डिजाइन डालो बोले तो नहीं भाई हाँ आप आपका कर लो बोल के बोलते थे. हाँ. तो इसमें यू कैन मेक योर ओन डिजाइन्स एंड डिफरेंट डिजाइन्स लाइक. जी हाँ. ओके. एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, आप खुद का डिजाइन डाल सकते हो. खाली अच्छा आपका एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. कॉम्प्लिकेटेड तो अभी भी है बिकॉज कोडिंग है ना, लाइक थोड़ा समझ में नहीं आया अभी भी, लेकिन बट आई विल ट्राई इंशाल्लाह. नहीं कोई बात थैंक नहीं. यू सो मच. कोडिंग का क्या रहता बोले तो आपको एक बार ग्रास्प आ गया, आपको बाएं हाथ का खेल बन जाता. कोडिंग एक बार ग्रास्प आ जाना, बाएं हाथ का खेल बन जाता. ग्राफ आ जाना बोल रहे हैं आप एक बार. ग्रास्प ग्रास्प अच्छा पकड़ आ ओके. जाना. अच्छा ग्रास्प ओके. एक बार सीमेंट को पकड़ आ गए तो उन्हें टूटता नहीं. अगर पकड़ नहीं ओके. है तो टूट जाता हूँ. हाँ. हाँ मेरा एक डाउट है. बोलिए. ये जो कंपाइलर है आप जैसा लिख रहे हैं वहां पे आपको कंपाइलर में बता रहा ना जो भी कर रहे हैं, तो मेरे पास वैसा नहीं बता रहा, तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये पूरा बंद करके फिर खोलना पड़ रहा पोर्ट को. क्या वो गोलाइट का बटन नहीं आ रहा नीचे. गो लाइव बटन आ रहा. अभी देखो अभी मैं कुछ यहाँ पे कोडिंग कर रही तो यहाँ पे मेरे को साइमल्टेनियसली बता रहा नहीं. फिर इसको बंद करके ब्राउजर को बंद करके फिर खोलना पड़ रहा, फिर गो लाइव करे तो ब्राउजर को रिफ्रेश कर. रिफ्रेश करे तो भी नहीं आ रहा मेरे पास. तो यहाँ पर से सेव करना है आपको कोड में से. Every अच्छा. time you have to save file. ओके. यानी तो Control आप S ऑटो सेव पे भी डाल सकते use अच्छा ठीक है थैंक यू. Control is shortcut is save. हैं. कंट्रोल एस. या कंट्रोल एस. ओके. एनी अदर क्वेश्चन. अभी क्या करना है? होमवर्क क्या बोले थे आप? सर आपको कौन से लैंग्वेजेस आते सर? हाँ एक सेकंड. आपको होमवर्क में क्या करना है बोले तो ये जो डाले देखो आप प्लस का डाले अब राइट नाउ पर. इसमें प्लस भी आना है, माइनस भी आना है, मल्टीप्लाई भी आना, डिवीजन भी आना है. तीनों आना, चारों आना. अच्छा. ये बहुत इजी टास्क करना चाहिए. आप जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का काम रहेगा. ट्रांजिशन बदल सकते हैं आप और जी. स्टाइलिंग भी बदल सकते चाहे तो, मगर मैं आपको कम्प्लीटली अप टू यू रख रहा हूँ. ये तीन चीजें कंपलसरी है होमवर्क के लिए. सर इसका कुछ जी. डॉक्यूमेंट भी मिलता है सर क्लासेस का? बोल तो कोडिंग आप लिख रहे हैं ना सर, वो इसका पीडीएफ कुछ भी क्लासेस का? पीडीएफ के क्लासेस का डॉक्यूमेंट तो नहीं है स्पेसिफिकली. तो सर डॉक्यूमेंट आप जो कोडिंग लिख रहे हैं सर उसका रहता ना सर, बटन बोले तो ये बोल के ऐसा? अच्छा वो नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है. डॉक्यूमेंट्स नहीं है भी. नहीं है सर. ओके. ऑनलाइन में सर्च करना सर. ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो. ऑनलाइन मिलता है, आपको टूल्स मिल सकते हैं. लेकिन अब राइट नाउ आप वीडियो भी देख सकते हैं. जब मैं आप ये पूरे रिकॉर्डिंग आपको दे देने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे. ओके आपको मिल जाते हैं. जस्ट ये पूरे चेंजेस जो हो रहे ना वो अपन ग्रास्प करना है सर. जो कोडिंग का डिफरेंट चेंजेस हो रहा ना सर, हाँ वो थोड़ा सीखने के लिए टाइम लगता थोड़ा. ठीक है. सर आपको आपके चैनल का नाम क्या है? जी जी. आपके चैनल का नाम क्या? चैनल का नाम कोडविता आजम है, मगर मैं व्हाट्सएप पे लिंक डाल रहा हूँ पूरे यूट्यूब लिंक्स वीडियोस. ग्रुप में सेंड कर दो ना चैनल का नाम. ग्रुप में सेंड कर दो लिंक एक बार. चैनल नेम ने वो हर वीडियो चेंज से दे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. और चैनल नेम भी सेंड कर देता हूँ. अब वो ग्रुप में शेयर कर दो ना. जी हाँ. शेयर कर दो, हम देख लेना आता नेक्स्ट टाइम में भी हम आपको.
सर आपको कौन से लैंग्वेजेस आते सर? मेरे को जावास्क्रिप्ट, पाइथन, CSS, HTML, जावा, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, C, C++, C#, जावा, पाइथन और बैश, लिनक्स, यूनिटी, ये आते तकरीबन ये वाले। आप कौन से क्लास जी आप कौन सी क्लास मैं कौन सी क्लास में हूँ? मैं 6th में हूँ। सॉलिडिटी भी आती है माशाल्लाह मुझे, अच्छा माशाल्लाह सॉलिडिटी भी आती है। साहब ये लिनक्स क्या रहती है साहब? ये लिनक्स से क्या कर सकते हैं? लिनक्स से एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, सर्वर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो हर चीज कर सकता है वो भी। लिनक्स से आपका एंड्रॉइड फोन, लिनक्स से चलता है एंड्रॉइड फोन आपका एंड्रॉइड फोन लिनक्स से बने हुआ है एंड्रॉइड। तो एथिकल हैकिंग के लिए ज्यादा नो चाहिए। उससे फायदा क्या है साहब ये काली लिनक्स से? इससे वो है, क्लाउड मैनेजमेंट में आता है ये काली लिनक्स। जी, तो वो सीखने से फायदा क्या है साहब ये काली लिनक्स? क्लाउड मैनेजमेंट में आता है और उसका अच्छी हाई सैलरी रहती है क्लाउड मैनेजमेंट में। जी, और ये सिक्योरिटी भी काली लिनक्स में आती क्या सर? ये आधी सिक्योरिटी आती, क्यों पेन टेस्टिंग इसमें आती काली लिनक्स में। अरे मैं बोला भाई आके जरा अदर भाई कुछ खाना चालान बना रहे, आगे आते तो ऐसा एनी अदर क्वेश्चंस? मेरे को HTML और CSS की नोट्स होना था भाई। अच्छा, नोट्स तो नहीं है मेरे पास ज्यादा। क्यों बोले तो मैं HTML अभी तो मैं फ्रेशर हूँ। HTML अभी स्टार्ट करा मैं HTML अभी तो। कब तक होएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर सीखने बैठे तो कितना टाइम लगेगा? लगता है सर आज आप बहुत हार्ड सीखा है सर आज। जी थोड़ा जरा बेसिक से जाना था। ठीक है, ठीक है। जी बोलो कितना टाइम लगेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट? 1-2 महीने तो आसानी से लगते हैं। तो मैं आपको बेसिक से सिखाओ ना जरा, हमको बेसिक से। बीच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बेसिक से कहाँ से पहले HTML ले लो ना जरा, और नोट्स भी दो ना जरा हमारे को, बहुत मेहरबान हो जाते थे आप, बहुत हेल्पफुल ये होता था जो हमारे लिए। प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो दूं आप लोगों को? सर मगर बहुत हार्ड था सर आज जी जी, का, और समझ में नहीं आया व्हाट्सएप सर। आज का वो थोड़ा हार्ड समझ में भी नहीं आ रहा था। बेसिक से सीखो, हम पहले फ्रेशर है, हमें कुछ भी नहीं आता पहले से। क्यों बोलो तो हम CS बैकग्राउंड के भी नहीं होते, BSc में दूसरे बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है मगर उतना हम नहीं पढ़े, जस्ट कोडिंग उतना नहीं आता हमको, कोडिंग बहुत कुछ नहीं मालूम। आप अभी भी तो सीख रहे हैं। तो HTML हमको जरा डेप्थ में, जैसा बेसिक से बोले तो थोड़ा हम आता। मैं एक बार थोड़ा टफेस्ट दिख रहा थोड़ा हमारे को, इसलिए जरा आपका व्हाट्सएप, सॉरी आपके यूट्यूब चैनल का भी शेयर कर देना था लिंक जरा ग्रुप में। जी, ये जावास्क्रिप्ट में अपन HTML का जो कल करे, ये सेकंड में मगर जावास्क्रिप्ट बोले तो डायरेक्ट कहाँ समझ में आता? पहले HTML सीखते हुए CSS होने के बाद डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट बोले तो पूरा दिमाग पागल हो जाता फिर। अब अपन कल HTML करे ना, जब HTML करे बाद में से ये सेकंड कंसेप्ट भाई मैं कल मैं आज ही ज्वाइन हुआ मैं ग्रुप में, मेरे को आज आपका वीडियो कल का फेसबुक पे आज ही देखे, आज ही ज्वाइन हुआ। कल का मैं देखा, मैं आज ही ज्वाइन हुआ आपके फेसबुक पे, आपका आज ही देख के आज ज्वाइन हुआ मैं। अच्छा, आप हैदराबाद से है क्या आप? जी हाँ, मैं भी सर आप क्या बोलते हैं सो जरा HTML के जरा लंबे 3-4 क्लासेस लेके, CSS के 3-4 क्लासेस लेके जावास्क्रिप्ट शुरू करना था सर। ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई। फर्स्ट तुम HTML लेकर बैच बनाओ, जरा बैच बनाए तो हमें क्या आता है परफेक्टली मालूम हो आता। डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट तुम बोल रहे हो तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आज का बहुत टफेस्ट दिखा, हमें कोडिंग कुछ भी समझ में नहीं आया। तो HTML जरा क्या है यूट्यूब भी में सेंड कर दो ठीक है, ग्रुप में। आप कल का वीडियो देखे तो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है HTML नहीं देखिए कल का देखिए जरा, ग्रुप हम बेसिक से भेजो जरा HTML। नहीं देखिए जरा भेजो ना भाई, जरा बहुत मेहरबान हो जाएंगे।
ग्रुप में डाल दो ना। ठीक है आपका चैनल क्या है जरा वो यूट्यूब चैनल भी डालो, ठीक है, ठीक है। शेयर कर दो ग्रुप में। Any other questions? आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आप जैसा AWS और क्या बोलते हैं ये डेवऑप्स 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 आता आपको? नहीं, डेवऑप्स के साइड का नहीं हूँ मैं खाली फ्रंट एंड बैक एंड का हूँ। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का हूँ, डेवऑप्स ज्यादा नहीं। आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? मेरे को एक जी जावास्क्रिप्ट आता है, HTML, CSS, जावा, C, C++, C#, पाइथन, एंगुलर, नेक्स्ट.js, रिएक्ट.js, रिएक्ट नेटिव, ये लैंग्वेजेस आते हैं। कितने 1 ईयर में सीखेगा आप? कितना टाइम में सीखे आप? मैं पहले पाइथन से शुरू करा 1 साल के, 1 ईयर ऑफ अच्छा, पाइथन करा। उसके बाद वही सीखते गया मैं। मेरे को डेटा साइंस के साइड जाने का है। जी ये पाइथन सीखने का तो आप पाइथन इजी रहता आपने कंपेयर करो तो स्टार्टिंग से जावा से। सर आप पाइथन भी पढ़ाई करते ना सर आप? जी जी, पाइथन और जावा हाँ स्क्रिप्ट में क्या फर्क है सर? पाइथन डेटा साइंस के लिए, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए। जी, हमको पाइथन मेरे को डेटा एनालिस्ट करने का है। डेटा एनालिस्ट के लिए मैक्सिमम 20% तो भी कोडिंग होना बोल के बोल रहे थे। आपको SQL भी आता है सर? SQL SQL नहीं नहीं आता? नहीं। ठीक है, पाइथन भी सिखा दो ना मैं, क्योंकि तो मैं SQL सीख ले तो मैं पाइथन थोड़ा पाइथन इजी रहता आपने सीखने बैठे तो। जी ज्यादा हार्ड नहीं, क्या बोले? ज्यादा हार्ड नहीं रहता। इजी रहता। एनी अदर क्वेश्चन? तो कितना बचा है? हाँ ऐसा दिखना था। एनी अदर क्वेश्चन? बिगनर्स के लिए एडवाइस करना था आप। माने अभी जिसको जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, बिगनर्स है, तो उन लोगों के लिए जो है ना स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करना था सेक्शन। अच्छा लाइक समर पीपल्स जो है ना अभी स्टार्ट करे, अभी ज्वाइन करे आपके वीडियोस देख के। जी जी, तो आप अगर बिगनर्स के लिए कुछ एडवाइस कर रहे तो उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते थे। अभी जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट का कोडिंग आप आज ही से स्टार्ट करके बताए, हम लोग तो देखे कोडिंग वाला, वो कोडिंग वाला सेक्शन जो है ना अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, हेडाक के ऊपर गया हो। नहीं, कल की क्लास में वो पूरा HTML का बेसिक से पूरा पूरा बेसिक दिखाया मैं कल की क्लास में। आप देखे वो क्लास? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या बोले तो आजम, हम लोग को वीडियोस जो है ना देर से मिला, जैसा फेसबुक पे वीडियो देखे इमिडिएटली मैसेज किए ज्वाइन करना स्टार्ट करें। आप ये वीक डेज में आप देख लिए ये वीडियोस, आपको समझ में आ जाता आसानी से। सर आप So- फिर से HTML और 1-2 क्लास लिए सर जरा स्टार्टिंग में, तो क्या है इजी ग्रैप्स होता कि कैसा करना क्या है। ठीक है बहुत बहुत मेहरबानी हो तो जरा HTML फिर से एक बार बोल दो ना, इतने जने का रिक्वेस्ट आ रहा। HTML बोले समझ, हम भी फ्रेशर ही है, कुछ डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट बोले तो दिमाग खराब हो जा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। HTML से फिर से तो आप क्लास के लिए समझो, समझ में आया था। थोड़ा बेसिक से बोलना था हमको पूरा, वो बेसिक। ठीक है। आप लोग क्या करो गाइस, जितने भी आप लोग जो है ना बिगनर्स है यानी कि फर्स्ट क्लास ज्वाइन करे ना, वो सब जने वोटिंग करो एक ग्रुप में। तो उसके हिसाब से एक फॉलो कर लेके आप एक टाइमिंग दे दो, हम लोग वो टाइमिंग पे ज्वाइन करते। ठीक है जी वही बोल। हाँ, तो आप जो ग्रुप में मैं अभी एक मैसेज किया था, प्लीज एडवाइस फॉर बिगनर्स। सो सब जने मिलकर आप लोग जो है ना जितने भी आप न्यू ज्वाइनिंग है ना, वो ग्रुप में रिवॉर्ड करो। तो हम लोग जो है ना आजम आप बताइए टाइमिंग बताइए, वो टाइमिंग हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि आप रिपीटली हर कोई जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो हेडबाउंस हो रहा है सबको जो है ना सबको आंसर नहीं दे सकते 1 by 1। जी तो
डू एज ए फेवर आप लोग क्या करिए आजम, हम सबको एक सेक्शन बता दीजिए बिगनर्स के लिए, एक टाइम दे दीजिए, वो टाइम पे हम लोग ज्वाइन हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जो बिगनर्स है तो ग्रुप में पूरे रिवॉर्ड करो। आप आजम आप टाइम दे दीजिए, वी आर स्टार्टिंग सेक्शन फॉर ए बिगनर्स, ज्वाइन एज ए दिस टाइम सो एंड सो टाइम, ठीक वो है टाइम पे ज्वाइन कर लेते। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मगर साहब आप यूएस में रहते, फिर आप क्या टाइम दे सकते हैं? आप वीकेंड के अलावा कुछ टाइम दे सकते हैं क्या एडिशनल डेज में? अब अपन के अलावा वीकेंड में तो नहीं हो पाएगा। हैदराबाद में और यूएस मैं अब राइट नाउ यूएस में हूँ। आप इंडिया के टाइम में कोई भी बेस्ट टाइम में दे सकते हैं क्या साहब? जैसा कि आपकी नाइट में हमारे डे में दे सकते हैं क्या आप? कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है। कोई एक वन डे डेज में दे सकते हैं क्या सभी एचटीएमएल के वास्ते ठीक है। और एचटीएमएल बिगिनर्स के लिए खाली वन डे निकाल सकते हैं क्या सब आपका कीमती? अपन वीकडेज में अपन ट्यूसडेज पे कर सकते हैं अपन 8:30। 80 को साहब आपका जी 8:30 PM हमारे रात टाइम पे सुबह में सुबह में होता हो। में आप क्या टाइम पे अवेलेबल है सर? साहब इतनी सुबह नहीं उठते ना हम लोग 7 बजे। नहीं 9:30 होते, 9:30 होते शायद। नहीं सर 7 होते, आपके ने 8:30 बोले तो हमारे पास मॉर्निंग 7 होते। ओके। अब यूएस में पढ़ते क्या? जी हाँ जी हाँ। अब मेरे को मिनिमम बोले तो मेरे यहाँ के 5 o'clock होते मिनिमम बोले तो। यानी तो अपन ये क्लासेस के बाद रख सकते हैं।